So, how are you? Okay, great. We can start. New look? I'm very well. How are you doing? We are also good, but chal raha Yeah, hai. it's Yeah. yeah, pretty. It's a absolutely a new look because after being in the lockdown and seeing myself a particular way, I said I must try something new. And why not? Because anyway, I'm hoping there's a lot of positive movement for shoot wise. I Hmm. think shoots have started. So Hmm. anyway, by October or something or the other, I'm starting something new. So starting another project. I'll have to get back to looking normal. तो मैंने सोचा थोड़ा सा मजे कर लेते हैं. Why not? Shoot कर रहा है proper आपके ऊपर अच्छे से. Thank you so much. So how have you been? You're looking very nice. You're looking very safe and sound, I think, in the lockdown. We are actually, we have to, no other options. You're Busy, right. You're right. so we have to look good and best. No. But So, very good. I'm glad you're looking safe and healthy. So just 1 second. इसको जरा yeah. पकड़ के रख. इसको बस पकड़ के रख ले. या इसको खोल दे पूरे दरवाजे. Actually, that door is banging. There's a lot of उसको खोल के रख देना बस. हाँ, बस. Yeah, we can start now. Sorry. So too many things you are doing and very nice. This Khuda Hafiz is coming. कुछ बताइए उसके बारे में. खुदा हाफिज जो है बहुत आई वुड प्रीटी मच से दैट इट्स अ फिल्म दैट आई एम सो ग्लैड एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला बिकॉज ये जो फिल्म है इट्स वन ऑफ दोस फिल्म्स वेयर आई नो दैट आई विल बी audience, of course I would like the audience to like this film, but I will be so proud of this film myself because this kind of a film you don't really get, and this character Faiz Abu Malik ऐसा आपको रोज नहीं करने को मिलता है. मतलब ये हर दिन ऐसे कैरेक्टर्स नहीं आते हैं आपको. तो ये खुदा हाफिज जो फिल्म है इसका सिनॉप्सिस बड़ा सिंपल है. 2008 में एक्चुअली एक रियल स्टोरी थी जहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ जो है उनकी they were looking for a job in the Middle East और उनको the wife actually got a job in the Middle East and the husband was supposed to join her after 5 days, and Times of India had actually had an article on this that when the wife went, she got kidnapped and abducted and put into the flesh trade. Okay. And then the husband went there and with the local authorities he was able to bring the wife back. तो ये उसी के ऊपर एक recreation है about on that, and where Shivalika is the girl who sort of gets kidnapped and Vidyut is Sameer who goes to sort of bring her back. लेकिन problem क्या होती है कि Middle East में compared to India आप कुछ भी आके कर देंगे. वहाँ के laws और कानून बहुत बहुत सख्त होते हैं. मतलब आप अगर एक तो सबसे पहले अगर आप वहाँ के देश के नहीं है तो आपके लिए और भी चीजें सख्त होती हैं. If you're a Hindu in a foreign land, you have to adhere to their rules, and they are more lenient towards Arabi people anyway. They'll be less lenient towards people from outside. इसलिए समीर जो है विद्युत के कैरेक्टर को बहुत मुश्किल होती है अपनी बीवी को ढूंढने में. अपने आप को तकलीफों में पा लेता है, जिसकी वजह से एंट्री होती है फैज अबू मलिक की, जो कि वहाँ के ISA जो कि इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ का मतलब जो सीनियर आदमी है, क्योंकि वो पुलिस से एक लेवल ऊपर है. अब तब ये फैज अबू मलिक जो है पहले तो मतलब he basically he कड़क है ना, ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ अ गाय. ही इज नॉट समबडी कि आप उसको कोई अपना रोना रो देंगे और वो आपकी बात बिलीव कर लेगा. इज अ वेरी कड़क, सो इज अ कमांडो. उसका काम ही यही है कि उसको ऐसे भी खुदेड़ के निकालना है. So his idea was the idea of this character was that this is a guy who suspects that Sameer is up to no good. लेकिन कैसे समीर उसको कन्विंस करता है, कैसे वो दोनों के दोनों जाके उसकी बीवी को फिर how are they able to manage to get his wife, not get his wife. So the whole film is about how Sameer's wife has been kidnapped and how Sameer also gets stuck over there. So it's a little tricky. So I'm playing this very black and white and very kadak किस्म का character फैज अबू मलिक. क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में. तो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मुझे 3 भाषाओं में बोलना पड़ा था इसके लिए. अच्छा. हाँ, तो मेरी जो इसमें मुझे फ्लुएंट अरबी बोलनी पड़ी, जिसके लिए, और मैं अरबी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग भी अरबी बोलते हैं. वो लोग अरबी नहीं बोलते जैसे हम लोग. हमारे यहाँ पे एक सब्जी आती है ना अरबी करके. तो एनीवे, तो हम लोग
तो अरबिक अरबिक और अरबी लोग जो होते हैं उनका उनका गला एक अलग तरीके से खुलता है और वो एक तरीके उनका एक लहजा होता है जिस तरीके से वो बोलते हैं। तो मैंने अरबिक डिक्शन क्लासेस ली। आई हैड अ ट्रेनर, अरबिक ट्रेनर, जो मुझे अरबिक के मेरे डायलॉग सिखा रहा था, उनकी मीनिंग। और फिर जब बोलते हैं तो मुंह कैसे खुलता है, जब अरबी बोलते हैं एक तरीके से मुंह खुलता है, गले का एक वो होता है जिस तरीके से वो आता है। तो हाउ डज दैट हैपन, एक वो भी मैंने सीखा। फिर मेरे जो डायलॉग्स होते थे वो कुछ 5-6 डायलॉग्स होते थे जहाँ एक साथ, जहाँ पे अगर मैं आपसे नॉर्मल अभी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, शिव एंड रिचा, आई एम सेइंग वी विल बी स्पीकिंग लाइक, चलो कभी हिंदी बोल दी कभी इंग्लिश बोल दी, बट वहां का जो मेरा कैरेक्टर था फैज अबू मलिक, आई वाज लिटरली सेइंग टू समबडी, आई वाज लाइक आयसे हुआ कानून फिजा फिहाजी उद्दौला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मेरे से बात, और मैं कमांडर। सो इट वाज लिटरली आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड अरबिक, बट एवरीथिंग विद एन अरबिक एक्सेंट। तो एक साथ मेरी स्विचिंग चलती रहती थी टू मेक द कैरेक्टर क्लियर। कभी उसने अपने कॉलीग से अरबिक में बात करी, कभी उसने किसी से सीनियर से इंग्लिश बात करी, लेकिन वो इंग्लिश नहीं हो सकती, वो अरबिक इंग्लिश होती थी, एंड वो हिंदी अरबिक हिंदी होती थी। तो इट वाज लाइक दैट। So switching between different languages was slightly tricky. I hope I managed to make it convincing. The accent was very important. Let's see. I know. बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है शिव। और कैसे हुआ, मतलब एक दो वर्ड्स बोलना और पूरा डायलॉग बोलना 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में? कभी कुछ प्रॉब्लम फेस हुई या कभी कहीं कुछ अटके या कुछ ऐसा हुआ शूट के टाइम पर? How did you manage? Actually, it's funny you mentioned that, because क्या हुआ कि एक बारी मैं कैरेक्टर के फ्लो में निकल गया, तो हुआ क्या कि एक लाइन मुझे बोलनी थी कि मेरे हिसाब से द लाइन वाज इन हिंदी की, मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से कुछ गलत चल रहा है, या नहीं मेरे हिसाब से, मेरे साथ लोगों ने यहाँ पे कुछ डाका डाला। जस्ट 1 सेकंड, ऊपर जाके पागल लोग दरवाजा धाड़ मार रहे हैं गधों की तरह, बंद करके ऊपर। Just 1 second है, मेरे यहाँ पे घर में हवा बहुत चल रही है, जाए जरा लॉक कर दे यार, ऊपर से लॉक कर दे यार, पता नहीं लोग क्या करते रहते हैं। Actually दिल्ली में भी बारिश का मौसम आ गया है, तो it's very heavy winds and heavy, yeah I'm in Delhi। मैं एक दिन के लिए आया था और मैं इधर ही फंस गया लॉकडाउन की वजह से। मैंने तो अपनी क्या? I know, but मैंने अपनी डबिंग भी इधर दिल्ली से ही करी है। अच्छा, ओके। थोड़ी बहुत जो डबिंग रह गई थी खुदा हाफिज के लिए, वो भी मैंने इधर से ही करी है। आजा जय, नीचे आजा, फटाफट आजा। हाँ सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं कैरेक्टर के बारे में बोल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, मैं फ्लो में निकल गया। आई थिंक the line was something that उन लोगों ने वहां पे जाके छापा मारा, it was some other word in Arabic, और मैं वो वर्ड भूल गया। पता नहीं, अब सीन चल रहा है, सीन के बीच में मतलब मैंने सीन तो कट नहीं कर सकता, मैंने ऐसे कुछ बोल दिया कि मेरे हिसाब से इन लोगों ने वहां पे जाके डाका डाला है। तो मेरे डायरेक्टर ने कट ये क्या डाका कौन बोलता है, who the hell से डाका डाला है, तो वो एक अरबिक, ये कोई डकैत, it was sounding like that. So I have made these kind of mistakes about sometimes कभी कभार वो दिमाग में कुछ और वर्ड होता है और बोलते कुछ और होता है, but वो they were errors which happened, but everybody realized on set कि ये अरबिक और हिंदी बोलना मतलब इतना कोई आसान नहीं है। तो people were very accommodating in that sense, and they said नहीं चलो ठीक है whatever। But I remember वो ये डाका डाला है तो it's my favorite line, because सब हंस के पागल हो गए थे। फिर मैं एकदम I had become red because I was like, और मैं इतनी convincing नहीं मैंने बोला मेरे हिसाब से वहाँ पे लोगों ने डाका डाला है। So cut डाका, how can you say डाका? So शिव, you are multi talented, आपने बहुत सारी चीजें करी हैं। आप एंकर हैं, स्पोर्ट्स एंकर, टीवी, वेब सीरीज, फिल्म। What left and what next? What next? अभी तो to tell you the truth, I really would like to एक के बाद एक do a lot of big scale feature films, commercial films, and I would love to do a film। मुझे कॉमेडी में किसी ने देखा नहीं है अभी तक in films, and I really want people to see me in a comedy film. I'd love to do a comedy film, yeah. शेरशाह के ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे शिव, क्योंकि हम लोग बहुत शेरशाह तो लेके
अभी तो बहुत जल्दी है उसके बारे में बात करना, बट आई कैन जस्ट से कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब मेरे विद्युत अगर मेरा आज अच्छा दोस्त बन गया तो सिद्धार्थ भी मेरा अच्छा दोस्त बन गया, एंड सो वी मेड सम गुड फ्रेंडशिप्स एंड वहाँ पे क्या था शेरशाह में, वी वर लॉट ऑफ बॉयज, lot of us boys were together throughout the shoot. तो boys जब एक साथ रहते हैं ना, तो boys में बहुत ही अच्छी सी दोस्ती हो ही जाती है. So I made some very good friends on that shoot. Nikitan Dheer is a very good friend of mine. My director has become a very dear friend of mine, Vishnu, and Vishnu made the shooting experience so much fun. Like we all had a wonderful time. So similarly with Farooq Kabir जो मेरे director हैं खुदा हाफिज के, you know, he really was so planned. He was so planned. उनको exactly पता था क्या करना है. तो एक actor के लिए जब एक director इतना planning के साथ आता है ना, तो इतना respect, you have so much respect for that and you're able to follow him exactly in what he wants you to do. And for me, na, for a tricky character like Faiz, I really needed that clarity. Clarity Farooq gave me. And I feel if today अगर मुझे फैज अबू मालिक के लिए कुछ भी अगर appreciation मिलता है, तो उसके पीछे पूरा हाथ फारूक कबीर का है. I mean, I really, you know, a character like फैज अबू मालिक जो है, उसके लिए उसका जिंदा होना जो है, उसके पीछे कम से कम 50 लोगों की मेहनत होती है. It's not easy for just to say, okay, Shiv has done it. No, there are at least there's a makeup, there's a styling, there's a costumes, there's a hair, there is a language coach जिन्होंने मेरी मदद करी, you know, the Arabic, there is the action director, there is Farooq Kabir, the cinematographer. तो सबकी मेहनत होती है. And if any appreciation this character or this film gets, I really think the technical team on this film has worked very hard. They have worked so hard. I can't even tell you. हम लोग ठंडी में उज़्बेकिस्तान में, खास बात आता हम उज़्बेकिस्तान में हम -3 में या -2 में शूट कर रहे होते थे, और हवा जोर की हवा चल रही होती थी. It was, और हवा से और ठंड लगती है, लेकिन हम लोगों को कपड़े वैसे पहनने थे कि हम लोग किसी डेजर्ट में, we are in some गरम जगह में. तो गरम जगह के लिए we had to wear thin clothes, पतले कपड़े. अब वो पतले कपड़े पहनकर हम लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं और सबकी बैंड बज रही है, because you know everyone was really like freezing in the, so that was, so you know, we do all these things to make it look like as authentic as possible, because we decided to shoot the entire film in Uzbekistan, and I hope that people like what they see, and the technical team on this film has worked very hard. Shiv, do you believe in astrology, numerology? Because I can see पंडित में double T आप लगाते हो, तो कुछ ऐसी. हाँ, मतलब nothing like that. Actually, मेरे एक दोस्त हैं, तो actually the thing was, my name, I did add a second T to it. So there was a friend of mine for a very long time. Just do it, yeah, and just do it and just trust me and all. So I said, ठीक है यार, I'll do it for you and all that. And मैंने इतना कुछ सोचा नहीं इसके बारे में. एक्चुअली ये मैंने पिछले साल से करना शुरू किया है, बट देन पिछले साल से I've been working non-stop, so I guess it's a good thing. Wow. But you know, the actual reason what I like to tell people is, it's the reason it's a double T because it's twice the. Nice. So anyway, no, but that is the twice the, not the trouble to the producer or director, but twice the trouble to my friends. But I can even say it's twice the talent, na? Yeah, actually, it's true. What did you discover during this pandemic? घर में बैठ के कुछ hidden talent, कुछ ऐसा, कुछ creative. Hidden talent से ज़्यादा मुझे ये realize हुआ है कि हम as human beings we can do, हम लोग बिल्कुल कितनी कम चीजों के साथ actually जी सकते हैं. Right. हमें इतनी चीजों की जरूरत होती नहीं है. अभी मैं आपको अपना खुद का एक किस्सा बताता हूँ. मैं दिल्ली आया था 14th मार्च को. मेरी मदर का बर्थडे था और मुझे वापस जाना था 15 तारीख को. और अगर आपको याद है, उस दौरान सडनली मीडिया में वो एक कोई पार्टी हुई थी जहाँ पे कोरोना हो गया था, एंड ऑल दीज थिंग्स दैट हैपेंड, एंड सडनली मीडिया में कोरोना एक बहुत ही बड़ी रियलिटी बन गई उस मिडिल ऑफ. उसके पहले सब लोग हल्के में ले रहे थे, इनफैक्ट शूटिंग्स चलती थी, और सडनली मिडिल ऑफ मार्च में कोरोना बहुत ही बड़ा स्केयर बन गया. तो मैंने कहा चलो मैं 2-3 दिन के लिए अपनी टिकट कैंसिल करता हूँ. और मैं आया था एक छोटा सा कैबिन बैगेज लेकर, और उसमें 4 कपड़े थे, बिकॉज मैं अगले दिन जा रहा था. I was going in one day.
I can't tell you. उसके बाद they announced the जनता curfew on March 22nd. Then they announced the lockdown from 25th of March. मैंने पिछले 4 महीने गुजारे हैं वो 4 कपड़ों के साथ. Okay. Because there was no delivery. I could not buy more clothes. I could not. There was nobody who had my size in the house I am right now. So it's Delhi में अब जाके 1 महीने पहले से relaxations आई हैं, जबकि मैंने जाके कुछ नए कपड़े खरीदे, but मैंने वो 4 कपड़ों में मतलब पिछले 4 महीने, and to tell you the truth, I was happy. I didn't have a problem with it. Yeah. So I just realized, that materialistically, whatever we are all used to hoarding, thing this that, but actually we can do with a lot less. We don't have to. I mean, of course, I miss human interaction. I would love to have met you in person and have a lovely chat with you in person. Yeah. And I'm sure we'll get to do that soon. But what I realized is that you have to be like water. अभी मुझे पता है कि मुझे अपना इंटरव्यू करना है, तो because I can't meet Richa, but I should figure out a way. I should digitally. I should do my interview. I should figure. Yeah. So you should learn to adapt, because I'll tell you one thing. ये एक बहुत बड़ी warning आई है मेरे हिसाब से. It's a very big warning to the humankind and to mankind that this is the situation, and basically that if we do not take stock of ourselves and the environment, if we do not take stock of these things, then I think कभी ना आगे जाके कभी ना कभी मतलब this can happen again. Exactly. We should really now, as human beings, try to take care of the environment, the planet, try to take care of each other, and try to really look at things in a different way. Because अगर हमने ऐसा नहीं किया, I mean, आपको क्या कभी लगा था कि आप किसी पैंडेमिक में जी रहे होगे? I never thought so. Never ever. और फिर हिस्ट्री बन जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज को पीछे छोड़ के, तो ये हिस्ट्री में 20 याद किया जाएगा. Yeah, and to tell you the truth, मैंने यूरोपियन फिल्में, अमेरिकन फिल्मों में ऐसे पैंडेमिक टाइप के फिल्म में कंटेंट बनता है. I never thought that will become a reality and we'll be living in such a. So it's crazy. It's really crazy. I mean, So I would just think, I know there is going to be. I would assume there is going to be a section of society. जैसी चीजें normal होंगी वो सारी चीजें भूल के वो they'll go back to their thing. But I'm hoping there is a section of society which will realize कि भाई ये हुआ है, we can make a change moving forward, and उनकी सीख से फिर बाकी लोग भी सीख के मतलब आगे चलेंगे. Yeah. Hopefully ये जल्दी खत्म हो, क्योंकि it's really scary. Yeah. तो क्या फॉलो किया OTT पे? ज्यादा टाइम नहीं है शिव, बहुत क्वेश्चंस हैं, बट टाइम हमेशा शॉर्ट रहता है, इंटरव्यू का बातें रह जाती हैं. क्या देखा आपने? मेरा एक दोस्त है निकेतन धीर, उसने एक बहुत ही अच्छा शो किया था OTT पे, रक्तांचल ऑन MX प्लेयर. मैंने वो देखा, बहुत अच्छा शो है. निकेतन इज अ वेरी गुड जॉब इन इट. फिर मैंने पाताल लोक देखा, which is very good. Then I liked Special Ops. I like Special Ops a lot. Then I even liked The Family Man. मैंने वो देखा. Then I've been watching a lot of old English shows जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे. I've watched this show called The Borg Empire. Then I've watched I watched this show called The Sopranos. So I was watching old English shows as well. So yeah, and then somehow in the middle मैंने TV देखना बंद ही कर दिया. तो मैंने कितना TV देखूंगा. So I literally, to tell you the truth, मैं मुश्किल से कभी-कभार दिन में 1 घंटा, पहले मैं बहुत देख रहा था. फिर मैंने I got into a different routine कि सुबह I want to do yoga. Let's say I want to do yoga in the morning, then do some work, then maybe in the evening work out, do some exercise. So रात को फिर time मिला. Otherwise, nowadays I'm not watching anything much because I was like, ठीक है यार, अभी देख लेगा. कितना आदमी कितना देखेगा यार. Exactly, कितना देखेगा सीरियसली. और न्यूज़ से काफी नेगेटिव वाइब्स भी आने लगती है जब आप. हाँ, लेकिन खुदा देख लेना 14 को. Of course, OTT पे तो परमानेंट ऑन है और रिव्यूज चलते रहते हैं मेरे, और जल्दी आपको रिव्यू कर दूंगी उसका. Thank you so much. चलते आपने फ्रेंड्स के लिए बता दीजिए, 2020 बहुत खराब जा रहा है, थोड़ा उनको मोटिवेट कर दीजिए और थोड़ा कुछ मैसेज दे दीजिए उनको. मैं एक्चुअली को ये कहना चाहता हूँ कि whenever it seems it is really dark, trust me, there is always light at the end of the tunnel. So just keep going, have faith
बी पॉजिटिव, हैव फेथ, बिकॉज अगर आप हिम्मत हार देंगे अभी तो हार जाएंगे अभी, तो आपको पता कि अगले हफ्ते बाद that light is there, you know. So all I'm trying to say, there is always light at the end of the tunnel. Yeah. Just be positive. जितना आप positive हो सकते हैं लाइफ में उतना बेटर रहेगा. Be positive. आराम से ठंडी सांस लीजिए, ठंडी सांस बाहर निकालिए. You know, so just breathe and just be positive. That's all I can say. आप भी बस घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपकी सारी फिल्म सीरीज सब सुपर डुपर हिट हो, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत बहुत आपसे बात करके थैंक यू सो मच. वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. बाय. टेक केयर. बाय. बाय.